Hello everyone. So today here we are here with board questions again. So here we have Unit 1 numerical applications ke board questions which we will be covering the last year paper as well as the sample paper of CBSE also. So let's start with it. So we are going to start with the board questions, right? So they are very important. numerical applications में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. So let's see what type of questions are covered by boards in the previous year. So let's start for that. Now the first question, it is from congruence modulo, as you all can see. So the last unit digit of 22 raised to 12. So as we have to find the last unit digit. So last unit digit के लिए हमें किसके साथ mod लेना है? 10 के साथ mod लेना होता है. So now this question came in 2021-22, right? So now let's do it. So 22 raised to 12 we have here, right? और 22 raised to 12 का हमें किसके साथ mod निकालना है? We have to find the mod with 10 और जो भी remainder आएगा हमारे पास that will give us the answer, that is the last unit digit. Okay, now that's what we have. So let's keep on dividing it. So 22 को अगर हम divide करेंगे 10 से तो क्या remainder आता है हमारा 2. So as according to the property of congruence modulo, we can write it as 2 raised to 12 also. So this is what we have. Now we will calculate the remainder for this. So बहुत छोटा सा हमें एक्सप्रेशन मिल गया अभी 2 के टर्म्स में, राइट? नाउ 2 के लिए अभी हमें चेक करना है हाउ डू वी डू. सो 2 क्यूब इज 8 एज वी ऑल नो. सो 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें 8 रिमाइंडर मिलता है एज वेल एज हमें क्या रिमाइंडर मिलता है -2 कांग्रेस मॉड्यूलो से. करेक्ट. सो -2 या फिर 8. सो व्हाट वी हैव हियर 22 रेज टू 3 कांग्रेस मॉड्यूलो विथ -2. छोटा नंबर हम लेते हैं हमेशा so that we can give our answer. So now what will we have? 4 power of this because we need 12. आप 2 raised to 6 से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. It depends on you how you want to take it. So here we get -2. It's an MCQ steps आपको नहीं चाहिए. I'm just giving you if it comes for 2 marks also. So now what do you have? -2 raised to 4. -2 raised to 4 will be how much? 16. So what will be your remainder? 6 mod 10. So what's your answer? C option, that is 6. What will be the remainder? 6. This is how you can solve. आपको लो करना है डिजिट्स को, दैट इज व्हाट वी हैव. और ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस, तो इसके पावर्स के लिए भी इट अप्लाइज. करेक्ट. So this is what we have. So this is the property that we are using here. Now the least non-negative remainder when 3 raised to 15 is divided by 7. So we have to find the remainder when 3 raised to 15 is divided by 7. So mod 7 हमें निकालना है 3 raised to 15 का. अब इसके लिए कौन सा वे है? इसके लिए we have again the same thing. 3 raised to 3 क्या होता है? 27 होता है. 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? Remainder will be 6 or -1. That's important. 6 or -1 क्योंकि हम we always look for 1 or -1, that is why. तो अभी हमें 6 रिमाइंडर आ रहा है या -1, तो हम कौन सा यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए? Of course -1. Correct. So now what do you have? So 3 raised to 3 -1 मिल रहा है हमें, तो हम उसका भी 5 कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सेम प्रॉपर्टी विच वी यूज इन द प्रीवियस क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन 2021-22 में आए हैं क्योंकि तब हमारा टर्म 1 था, उसमें सब एमसीक्यूज थे. सो यू माइट बी थिंकिंग सेम टॉपिक के दो, इट कैन कम, राइट. सो व्हाट डू यू हैव हियर? हियर वी हैव 3 raised to 15 एंड व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव -1. अब -1 तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. सो -1 का मतलब हमारे पास क्या है गया? रिमाइंडर 6. So what's our answer again? C. That is our final answer. So it's an MCQ. So again, you can do it directly. Now let's move on to the next. Now this was there in the CBSE sample question paper of 21-22. पहले दो questions board questions थे. This is also the sample. This is from the sample paper which was released by board again. Correct. So x plus y is greater than equal to 2xy. अगर दो positive integer है तो कौन सा option correct है? Now for this, what you have to take a very simple concept. अगर मेरे पास x और y both are greater than 0, so what is the condition that is have? So for this, arithmetic mean of the two numbers is always greater than geometric mean. ये बहुत important property है, you should all know it.
करेक्ट, रिमेंबर इट. सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू. और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट एक्स वाई. सो अकॉर्डिंग टू दिस जस्ट वन लाइन आंसर वी गेट जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी. सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ए ऑप्शन. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट. Correct. Now let's move on to the next. Now this is from 2022-23 paper, and it is based on alligation and mixtures. Correct. So this is an MCQ which came last year. So now 85 rupees per kg and 100 rupees per kg respectively it is there, and 92 rupees का आपको mixture चाहिए, तो किस ratio में आप mix करें. So let's make it cheaper, dearer. So this is cheaper, this is dearer, and this is mean price. Let's do the simple graph for this. So 100 minus 92, and 92 is minus 85. Okay. So the ratio of cheaper upon ratio of dear. This is what we get. So what do we get? 100 minus 92 upon 92 minus 85. So what do we get? 8 upon 7. सो आपको बस ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि पहले कौन सी क्वांटिटी दी है. चीपर दी है तो उसका रेशो पहले आएगा, अगर डियरर पहले दिया होता तो उसका रेशो आता. सो एमसीक्यूज में थोड़ा सा वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज 8:7 ऑप्शन बी है और 7:8. अब कौन सा लिखेंगे आप, तो जो क्वांटिटी पहले दी गई है उसका रेशो नंबर पहले आएगा. ओके. Now let's move on to the next. This is based on first chapter again from linear inequalities. Okay. So now this was in 2022-23. Now mod function है. Mod function के लिए what we have to do? We have to find the values of x possible. Now for this what we will do? Now this is mod of x plus 1 upon x plus 1 and it is greater than 0. Now पहली चीज तो ये, अगर greater than 0 होना चाहिए तो हमारे पास mod of x plus 1 दो तरह से ओपन होता है. कैसे ओपन होता है? It opens in two ways. इसका ब्रेक पॉइंट क्या है? ब्रेक पॉइंट मतलब कहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो रहा है. सो x प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन x इज माइनस वन. ओके. सो इसको दो तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं. एक x प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, और एक माइनस ऑफ x प्लस वन व्हेन x इज लेस देन लेस ग्रेटर देन वन, और ये लेस देन माइनस वन. ओके. क्योंकि ये माइनस वन पे जीरो हो रहा है. ठीक है. सो ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो एक्स प्लस वन ओपन होगा, और अगर लेस देन माइनस वन होगा तो ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन ओपन होगा. सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन माइनस वन, बट नीचे वाला नंबर तो सेम ही रहेगा, एक्स प्लस वन. सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा ये फॉर ग्रेटर देन माइनस वन. देन don't go for greater than 0. Okay, when x is greater than minus 1, which is gives you the answer 1. Correct. But when x is less than minus 1, तो क्या बन जाएगा ये? Minus of x plus 1 upon x plus 1, which gives you the answer what? Which gives you the answer minus 1. Correct. अब किस केस में आंसर जीरो से बड़ा आ रहा है वो बताइए मुझे. फर्स्ट केस में. करेक्ट. फर्स्ट केस में क्या आ रहा है? वन. तो अगर वन आंसर आ रहा है हमारा विच इज ग्रेटर देन जीरो, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन. तो कौन सा इंटरवल है जो आपको ये बता रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन? दिस इज बी ऑप्शन. दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू इंफिनिटी. राउंड है बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है. करेक्ट. सो माइनस वन पे जीरो होता है, बट वी नीड ग्रेटर देन जीरो. तो अगर माइनस वन होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगा? जीरो सिंपली. सो नाउ हियर वी गेट द आंसर बी, बिकॉज टू स्प्लिट्स करेंगे आप, उससे आप चेक करिए पहले ब्रेक पॉइंट, और उस पर फिर चेक करिए विच इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 21-22. Now, a person can row in still water at the rate of 8 km per hour. If it takes him twice as long to row upstream as to row downstream, then you have to find the speed of the stream. देखिए इसको हम बहुत सिंपल वे में सॉल्व करेंगे. A person can row in still water at the rate of 8 km per hour. 8 km per hour से वो still water में चल रहा है. So now first let me tell you speed of the upstream और speed of downstream कैसे लिया जाता है.
सो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में यू मूव अकॉर्डिंग इन द सेम डायरेक्शन जिसमें फ्लो हो रहा है. सो इट इज 8 प्लस एक्स. व्हाट आई एक्स आई एम टेकिंग? एक्स इज स्पीड ऑफ द करंट. करंट, वाटर, स्ट्रीम, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? वाटर भी लिख सकते हैं. और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, इसलिए 8 माइनस एक्स, क्योंकि आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं तो आप स्लो जाएंगे. करेक्ट. सो 8 माइनस एक्स, ये हमेशा याद रखिए. अप स्ट्रीम में इट इज ऑलवेज द स्पीड ऑफ boat in still water minus the speed of the stream, or downstream it is always the addition of the two. Okay, now it is given that it takes him thrice as long to row upstream as to row downstream. So t of upstream upon t of downstream. करेक्ट. दोनों का रेशो क्या दिया गया है? अप स्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगा, थ्राइस as much as for downstream. Now I have given you in formula list also, and I have told you in the lecture, previous lectures also, on the boats and streams कि टाइम का रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड रेशो. तो इसका मतलब स्पीड इज थ्राइस इन डाउनस्ट्रीम एज द स्पीड इन अपस्ट्रीम. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन. नाउ 3/1 speed of downstream upon speed of upstream. Let's solve it. So if we cross multiply, what do we get? 24 minus 3x is equal to 8 plus x. So 16, 4x. So x is 4 किलोमीटर पर. सिंपल. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, दिस इज दिस. ओके, अगर आपको ये आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. सो व्हाट इज द आंसर? 4 किलोमीटर पर आवर. दैट इज सी ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ एक्स कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो किसके साथ निकालना है आपको? 3 के साथ निकालना है. सो -4 आंसर आना चाहिए. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस सॉल्यूशन इज देयर. नाउ कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का, या मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप x+4 को किससे डिवाइड करना है आपको? बेसिकली 3 से डिवाइड करना है. करेक्ट. 3 डिवाइड्स x+4, दैट इज व्हाट वी हैव. तो कौन सा ऐसा नंबर है, आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए कि अगर मैंने x+4 लिया, इट इज डिविजिबल बाय 3. सिंपल लॉजिक है. 3 डिवाइड्स x+4, सिंपल ये लगना है. अगर आप यहाँ पे -2 रखेंगे, सो -2 + 4 इज इक्वल टू 2, सो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. करेक्ट. तो ये ऑप्शन कलेक्ट हो जाता है. 12 + 4 कितना होता है? 16 होता है, विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 19 + 4 कितना होता है? 23 होता है, विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 35 + 4 कितना होता है? 39. Yes, this is divisible by 3. So what's your correct answer? 35. x+4 क्यों किया? क्योंकि हम करते हैं नंबर माइनस रिमाइंडर. करेक्ट. और माइनस रिमाइंडर मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? -4. इसलिए हमारे पास क्या बना? -4. डोंट गेट कंफ्यूज. मैम आपने प्लस किया है रिमाइंडर को? वी हैव नॉट प्लस, वी हैव सब्ट्रैक्टेड द रिमाइंडर. ओके. किसी नंबर में से आप रिमाइंडर हटा दीजिए तो वो डिविजिबल बन जाएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. Correct. Let's move on to the next. This was again in the sample question paper of 21-22. So now this is two athletes are there, Vijay and Samuel. They finish 100-meter race in 12 seconds and 16 seconds respectively. Find by how many meters does Vijay defeat Samuel? So 100 मीटर का रेस है. विजय ने कितनी देर में कंप्लीट किया? 12 सेकेंड्स में. Correct. Now Vijay finished 100-meter race in 12 seconds and 16 seconds, both of you simultaneously or respectively. Now by how many meters does Vijay defeat Samuel? So now एक simple सा logic है. देखिए दोनों का time difference कितना है? 4. Correct. 12 seconds and 16 seconds. So time difference is 4 seconds. So basically what we have to do is we have to find कि Samuel ने 4 seconds ज़्यादा लिए, right? So now it means Vijay is faster um, by 4 seconds, correct? Right? Now, so he beats
Samuel by what? Right? That is what we have to find. Now Samuel ने कितना टाइम लिया? 16. So 100 by 16 into 4. करेक्ट. सो सिंपल सा है, 4 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. सो इफ आई कैलकुलेट इट नाउ, व्हाट विल यू गेट? 25 meters. सो 25 मीटर से विजय डिफीट्स सैम्यूल. द सिंपल लॉजिक. आप यूनिटरी मेथड यूज करिए. 100 meters in 16 seconds. करेक्ट. सो 1 सेकेंड में कितने मीटर्स हुआ? 100 by 16. एंड 4 सेकेंड्स में कितना कवर कर रहा है फिर वो? मल्टीप्लाइड बाई 4. सो यू गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 seconds. और उतने ही डिस्टेंस से किसने डिफीट किया उसको? फिर विजय ने डिफीट किया. करेक्ट. डोंट थिंक कि वी आर फाइंडिंग इट फॉर सेम्यूल, बट अगर हम सेम्यूल का निकाल रहे हैं 4 seconds का डिस्टेंस, by that much distance Vijay defeats Samuel. Correct? Now let's move on to the next. Now this is again from the sample question paper of 21-22. Now if the present time is 8:40 p.m., then the time after 8:76 and a half hours will be how much? Now 8:40 p.m. हुआ है. स्टूडेंट्स देखिए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और आपका क्लॉक मोस्टली चलता है 12 आवर्स पे, राइट? 12 आवर्स में फिर दूसरा टर्न स्टार्ट होता है. बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट 24 आवर्स, बिकॉज उससे आपको एएम और पीएम में कंफ्यूजन नहीं होगा. सो इफ फर्स्ट फ्रैक्शन को हम छोड़ देते हैं, वी डू फॉर 876 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 से. 12 आवर्स से भी कर सकते हैं आप, बट उससे आपको एएम और पीएम का इंपॉर्टेंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, कितनी साइकिल्स हो रही है, इवन नंबर ऑफ साइकिल्स हो रही हैं या ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स हो रही है. बट 24 से हमें वो भी नहीं ध्यान रखना पड़ता है. लेट्स जस्ट सॉल्व इट. So let's divide 876 by 24 and see the remainder. Okay. Now 24 fours are, threes are, we will go. Okay. Now 2, 1. So how much you get? 51. So 156. Now let's divide it again. Now we go for 6. Right. So let's go for it. So what do we get? We get 12 as the remainder. So 12 is your remainder. तो इसका मतलब कितने टाइम बचता है हमारे पास? 12 आवर्स. करेक्ट. अब 876.5 आवर्स था. करेक्ट. सो नाउ हमारे पास कितना रह जाता है? सो 876 अगर होगा तो हमारे पास 12 रिमाइंडर आता है. सो 12 अगर हमारे पास रिमाइंडर आता है, सो 840 840 840 840, मतलब आप कहाँ आ जाएंगे? 8:40 पीएम से 12 आवर्स ऐड कर दीजिए, उतना हो जाएगा. सो 8:40 पीएम से यू विल कम टू वेयर? 8:40 AM पे आ गए. अब हाफ आवर मोर है, add half hour. Half hour means what we will add? 30 minutes, right? That is what we have. Half an hour means 30 minutes. So what will you get? 9:10 AM. कितना टाइम हो जाएगा? 9:10 AM. That is what we have. I repeat again, we divide 876 by 24. Whatever we get the remainder, इतने आवर्स आप ऐड कर दीजिए. So 8:40 PM में आप 12 आवर्स ऐड कर दीजिए. So you will get 8:40 AM. Simple. But half an hour कम लिया था हमने. We just took for 876. So now we will add 30 minutes more. That is half hour more to it. So we get 9:10 AM. Now let's move on to the next. Now this is again from the sample question paper of 21-22. Now they have defined a relation as A congruence modulo P for the modulo M. Now we have to show whether it's reflexive, symmetric but not symmetric, symmetric but not transitive, equivalence, reflexive, symmetric but not transitive. So if you know the properties of mod, करेक्ट, आप इजिली इसको वन गो में मार्क कर सकते हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंपली मीनिंग ये होता है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री. करेक्ट. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R for every a belonging to the given set. Symmetric का मतलब क्या होता है? If a comma b belongs to R.
then B comma A also belongs to R. If transitive का मतलब if A comma B belongs to R, B comma C also belongs to R, then A comma C belongs to R. अब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो ये आपकी मॉड की प्रॉपर्टीज आती हैं। ए और ए मतलब आप अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर रिमेन्स द सेम, सो ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ए मॉड एम, छोटा नंबर 2 को आप अगर 10 से करते हैं, सो 2 का 2 के साथ ऑफ कोर्स वही रिमाइंडर होगा, 3 का भी वही होगा, 4 का भी वही होगा, 5 का भी वही होगा विद द 10। सिमेट्रिक अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग, correct? And third, if A comma B belongs, B comma C belongs, then A comma C also belongs. So according to the properties of modulo, all these will be true. So that is why we have this. So yes, it will be an equivalence relation. Now let's move on to the next. Now this is again from the sample paper 21-22. Now this is the part of allegation mixture, but ये थोड़ा सा different है. प्रॉफिट और लॉस उसके टर्म्स में दिया है. सो अ retailer buys 250 kg of rice, a part of which he sells at 10% profit and remaining at 5% loss. If the net profit made by the retailer in the whole transaction is 7%, then find the quantity of rice sold at 10% profit. तो उसने एक पार्ट राइस का सेल आउट किया 10% प्रॉफिट पे, एक सेल आउट किया 5% लॉस पे, और उसको नेट प्रॉफिट हुआ कितना 7%. तो इसमें हम क्या करते हैं, चीपर लॉस वाला होगा विच को उसको हम माइनस से लेंगे और डियरर को हम लेंगे प्लस से, बाकी कुछ नहीं करना है आपको. अब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है मीन क्वांटिटी पे भी तो वहां भी प्लस 7 आएगा, अगर वहां लॉस होता तो हम उसको नेगेटिव लेते. रिमेंबर, लॉस विथ नेगेटिव एंड प्रॉफिट विथ पॉजिटिव. So here we get 3 and here we get 7 minus minus 5, 12. Okay. Now, ratio of cheaper to dear. This is what we have, simple thing. So ratio कितना है 3:12, that is 1:4. अब cheaper वाला कौन सा था, 1 part of price. तो उसने कौन सा हमें पूछा, हमें उससे डीलर पूछा है जो 10% प्रॉफिट पे सोल आउट हुआ, तो वो हमारा रेशो आ रहा है 1:4. 1:4. अब हमारे पास राइस कितना है 250 kg है. अब 250 को यू हैव टू डिवाइड इनटू 1:4. सो आपके पास 10% प्रॉफिट वाला राइस कितना हो जाएगा 4. कितने में से 5 में से ऑफ 250. So how much kg? It comes 200 kg. 5 4 by 5 because 1:4 रेशियो है. टोटल हमारे पास 4 plus 1 कितना होता है 5, और उसमें से कितने पार्ट्स वाला राइस है 4 पार्ट्स. So we get here 200 kg, that is option A. Now let's move on to the next. It's on 5 pipes and cisterns. Now here it's given that 2 pipes can fill a cistern in 8 hours and 12 hours respectively. The pipes were opened simultaneously and takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. Once the cistern is full, it will get empty due to leakage in how many hours? Correct? In how much time? So now A can fill in 1 by 8 in 1 hour. Correct? 1 by 8 fill cistern को in 1 hour fill करें, क्योंकि 8 hours में पूरा fill कर रहा है. B, we fill it 1 by 12 in 1 hour. तो लेट्स फाइंड फर्स्ट कि ये दोनों मिलके कितने टाइम में फिल करते हैं. ओके, सो टुगेदर दे विल फिल इन हाउ मच टाइम 1/8. इतना वो 1 आवर में फिल कर सकते हैं. सो 12 और 8 का वी कैन टेक दिस 3 + 2, सो 5/24. 5/24 का मतलब हो गया हमारे पास 4.8 आवर्स. 4.8 का मतलब हाउ मेनी आवर्स वी हैव, सॉरी, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 4 and 48 minutes. 4 hours 48 minutes. करेक्ट. सो 4 hours 48 minutes का मतलब हमारे पास क्या है, इतने टाइम में वो टैंक को फिल करते. बट टैंक ने कितना टाइम लिया, इट टेक्स 12 minutes more to fill the cistern due to leakage.
सो 4 hours 48 minutes में अगर हम 12 minutes ऐड कर दें, सो व्हाट वी विल गेट 5 hours. इसका मतलब पूरा टैंक फिल हुआ कितनी देर में? 5 hours में. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन अगेन? 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1 जो एम कर रहा है इंटू 1/5. करेक्ट, क्योंकि 5 hours में वो पूरा फिल हुआ. नाउ लेट्स मेक इट आउट. सो ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. करेक्ट, -1/5 is 1/e. So what do we get the answer? So we get 1/120. So हमारे पास E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 hours. So empty वाला टैंक कितनी देर में empty करेगा उसको? 120 hours में empty करेगा. That is option D. सिंपल वे में सॉल्व करिए, डोंट मेक द कैलकुलेशंस हार्ड. फर्स्ट यूनिट में इफ यू कीप ट्रैक ऑफ द कैलकुलेशंस इजीली यू कैन सॉल्व इट. सिंपल नोट पे रखिए. ओके, नो नीड टू वरी. नाउ दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच केम इन 22 23. इंटरनल चॉइस थे दोनों क्वेश्चंस में, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व इट. So two pipes A and B can fill a cistern in 28 and 32 minutes respectively. If both pipes are opened simultaneously, find how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes. करेक्ट. सो 18 मिनट्स में टैंक फुल हो जाना चाहिए. इस तरह से हमें बी को क्लोज करना है. एक सिंपल सा आपको देखिए लॉजिक बताते हैं. ए ले रहा है 24 मिनट्स, तो 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा? 1/24. दिस इज फॉर ए. तो 18 मिनट्स तक ए पाइप तो पूरा चल रहा है. सो 18 मिनट्स में वो कितना फिल करेगा? 18/24 इन 18 मिनट्स बाई ए. करेक्ट, 18 मिनट्स पूरा टैंक 18 मिनट्स में. प्लस बी 1/32 था, लेकिन बी को हमें n मिनट्स ही चला, उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया. करेक्ट. अभी हमारा टैंक फुल हो गया. क्या हो गया? टैंक फुल. दिस इज व्हाट वी हैव द इक्वेशन. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी. व्हाई डू यू गेट 18/24? बिकॉज ए इज going on for 18 minutes continuously. We have not closed it. For the full time it's going on. Now let's find it. So 24 or 32 का how we do? First let's reduce it. 3/4. So 32 ही हो जाएगा हमारा LCM. 24 plus n. So what do you get? N as 32 minus 24. That is 8. So 8 minutes के बाद B should get closed. बी सिर्फ 8 मिनट्स तक चलेगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा और ए विल कीप ऑन गोइंग एंड आवर टैंक विल गेट फिल इन 18 मिनट्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस. नाउ this is for the races and games. The option internal choice was there. So these questions were for MCQs, right?